So India is since the tropical country, it is having a significant variations of hot and cold. Therefore, whatever building material that has been used in the past, that has suffered a lot of tension compression with time, since there is a temperature variation or maybe climatic variations, western variations. So because of all these factors, you will see there is a lot of weathering action, and because of the weathering action, structure will disintegrate, and because of the disintegration, it will further lead to the damages, and it may fail also. So this is another map for seismic hazard zonation map, multi-hazard zonation map. So you will see different hazards are there. So suppose you are affected sites. So how we can take some measures to prevent or to strengthen our structure, so that whatever the consequences happen, it doesn't affect the structural stability of those structures. So here we have tried to map those different sites, mainly World Heritage sites, or some are the important heritage sites in this Indian map. So some are situated in the hill, like some forts. ठीक है, ये दिक्कत नहीं है. Some are situated in a plain. Somewhere the geological condition or soil condition is very favorable. Somewhere it is not that so favorable, and somewhere it is not good at all. So for all these kind of variations, you are seeing we are in a very difficult scenario here. Like we have so many soil variability, we have a structural variability, we have a climatic variability. So with these all kind of variability, how we can consider one by one hazard for a particular heritage structure and remedial measures. And this is the seismic zonation map. You can see different these these heritage structures are being plotted in this map, the seismic zonation map. And you can see many of the heritage structures in India are situated in high seismicity zone. And this was prepared by IT Madras. Now, I will come to another dimension to this. There is a variability of ages. Like you will see from 2600 BC to recent time, there are so many structures, and you consider a structure which is more than 100 years, you can consider it as a heritage property or structure. So you can see how many numbers of structures is existing in India. There is a significant drop. I'll give you a one small example. If you consider only Tamil Nadu, Tamil Nadu itself is having more than lakhs of heritage property or structures. So from the Dravidian era itself, there is such a huge heritage stock. And some of the examples I have given here, this is only a examples only. Like you see, in this particular time period, Mohenjo-daro, Harappa. Before that, right now we have discovered Rakhigarhi also in Haryana. So you have seen, say 2,500 years BC or maybe 5,000 BC itself, we had a civilization in India which is already gone through so many disaster or difficult events. Then we have Sati Stupa, which is again constructed say 3,000, 300, 200 BC. Then in Gupta dynasty, then post Gupta, Chandela dynasty, Chola dynasty. There are several dynasties having several iconic structures which are right for us, as well as the property not only for India, for World Heritage. That's why they are listed in the World Heritage, UNESCO World Heritage sites also. So, since we are having so much of rich heritage in India,
we need to study all these structures in a very uh, realistic manner with some very realistic assumptions with its as per its size condition, as per size for specific disasters, we need to find out. So for that, I'm coming to now I'm coming to little bit a technical domain where I will try to understand what is dynamic analysis, why it is important. In last lecture, Siddharth has explained about the static analysis of structure and why structural analysis is important. And yesterday, in this hall itself, you have witnessed earthquake. So earthquake is a dynamic analysis. So suppose there is a dynamic event. So those static analysis, whatever you have carried out, that may not be that much value because during the earthquake you will have a reversal of stresses. Whenever tension was developing during a static analysis, that may subjected to compression. Whenever compression was done, that going to tension. So because of this reversal of stresses and due to the its dynamical nature, the structural frequency sometimes comes in close proximity with the excitation frequency. Excitation frequency that we got from the earthquake, whatever we experienced yesterday, that has a yesterday probably in my AD lecture I explained about frequency domain and time domain, like some pulse is coming that you call it time domain. Now we convert that thing in a frequency domain. Uh, like how many times that kind of say a sinusoidal pulse is coming, the frequency, that numbers. So in that frequency domain, you will see you will get some kind of excitation frequency. Like we experience some kind of excitation frequency yesterday. Suppose that excitation frequency is coming in close proximity with the structural frequency. स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है, जो करंट हम अनुभव किया यस्टरडे, उसको मैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस. और रेजोनेंस हो जाता है तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन दैट कैन गो इनटू इनफाइनाइट, indefinite, you cannot predict it. So स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंसी को हमें एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी से दूर रखना चाहिए स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए. तो यही हमारा रोल है डायनामिक एनालिसिस करने का. तो पहले हम आते हैं कि एक मल्टी फिजिक्स मॉडल है कि एक फिजिक्स से काम नहीं चलने वाला है. और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिसिटी. कल भी हमने बात किया है इलास्टिसिटी के बारे में कि एक स्ट्रक्चर कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है. तो उसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को जो हम प्लॉट करते हैं उसका जब स्लोप निकलते हैं उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट. वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कितना डिफॉर्म कर सकते हैं. कोई अर्थक्वेक हो, कोई डायनामिक विंड हो, कोई भी स्टेप इवेंट हो. देन यूनिलैटरल contact, plasticity, friction, damage, fracture, viscoelasticity. So एक कुछ टर्म है, मेरे ख्याल से आप लोग कुछ पढ़े होंगे और कुछ आप लोगों का कैरिकुलम में नहीं होगा क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कोई स्टोन स्ट्रक्चर है उसके लिए वो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी कुछ चीजें फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्ट्रक्चर में कोई एग्जिस्टिंग डैमेज है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है. जैसे इसी स्ट्रक्चर में मैं मान लेता हूं कि कोरोजन हो चुका है, आरसी बिल्डिंग है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग है, बट कोरोजन हो चुका है. तो कोरोजन बिल्डिंग पे जो अर्थक्वेक आया जिसका जो इफेक्ट होगा वो अलग होगा एक इंटेक्ट बिल्डिंग में से. तो ऐसा भी हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोजन स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है उसका वजह से फेल हो गया. बहुत सारा केसेस में ऐसा भी होता है. ऐसे हमने जैसे अभी टार्की में जो अर्थक्वेक आया, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था 15 में, ये सब चीजें ऑब्जर्व किया गया कि बहुत अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट डैमेजेस और डैमेज. तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर है इसमें एक ब्यूटी है जो मैं कल आप लोगों से साझा किया था कि इसको हम बोलते हैं प्लान डेंसिटी. कि इसका आप देखोगे कि जो वॉल है उसका जो जितना एरिया होता है
और उसका स्ट्रक्चर का जो टोटल पेरिफेरियल एरिया होता है वो सिग्निफिकेंट एरिया होता है। तो आप कंटेम्परेरी कोलरेट का एग्जांपल लेते हैं, हमने कंटेम्परेरी कोलरेट पे बहुत सारा एक्सप्रेशन देखा, हमारा साइंटिफिक स्टडी हमने ऑब्जर्व किया, तो उसमें अराउंड 47% है प्लांट डेंसिटी। उसका मतलब क्या है, मतलब टोटल बिल्डिंग का जितना एरिया है उसका लगभग 47% एरिया है स्टोन वॉल। अब इतना आप एरिया जो है तो एक वो एक पहाड़ का बराबर ही है, तो उसमें जस्ट 50% ही तो वॉइड है, प्लांट डेंसिटी का वॉइड ज्यादा है। मैं मोटा मोटी क्रूड वे में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि उसका प्लांट डेंसिटी इतना ज्यादा है कि कोई भी लेटरल फोर्स आए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर आप बोलते हैं कि 2000 साल से हमारा पुराना स्ट्रक्चर ये हो गया क्योंकि उसका प्लान डेंसिटी इतना हाई रखा गया, उसको डिजाइन इस हिसाब से किया गया। हमारे जो आर्किटेक्ट थे तो वो इतना बुद्धिमान थे, उनका पास जो नॉलेज बेस था वो इतना अच्छा था कि वो स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया जो स्ट्रक्चर कैसे भी कोई भी सिनेरियो में कॉम्प्रेशन में रहेगा। जब कुछ चीज कॉम्प्रेशन में है फेलियर का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बाकी जो जैसे लिंगराज टेम्पल, ये भी एक उड़ीसन आर्किटेक्चर है भुवनेश्वर, वहां पे भी 43% है। तो सिमिलरली अदर प्लेसेस में भी हमें देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा उसका प्लान डेंसिटी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम केदारनाथ टेम्पल को लेते हैं। तो केदारनाथ टेम्पल कैसे इतना मड फ्लो, इतना वाटर या फ्लड या मड स्लाइड इसको कैसे झेल गया। हाँ एक तो है कि एक यहाँ पीछे एक शिला आके रुक गया जिसको हम आजकल भीम शिला का नाम से जानते हैं, और उसका वजह से पानी दोनों तरफ पास कर गया, मतलब बिकॉज ऑफ द उसमें भी एक फिजिक्स है जिसको हम थोड़ी डायनामिक्स बोलते हैं कि मड है या पानी है, जब उसका पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इट विल फॉर्म सम vortexes that it will deflect इन अदर डायरेक्शन, तो फ्लो डिफ्लेक्ट हो गया और मंदिरों में कोई डैमेज नहीं आया। बट उसका बावजूद भी जितना मड स्लाइड आया था तो वो तो उसको भी सप्रेस करके उसका टेम्पल को क्रॉस किया, तो उसका वजह से भी डैमेज हो सकता था। तो टेम्पल का जो प्लान डेंसिटी है यहाँ पे भी वही प्लान डेंसिटी है, क्योंकि हमने उस पे मैं आ रहा हूँ उसके एनालिसिस पे, उसका भी जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि इतना प्लेन डेंसिटी होने का वजह से तो जितना भी फ्लूइड फोर्सेस आया, जितना भी सॉइल प्लस फ्लूइड प्लस जितना भी मड फोर्सेस आया, इट वाज एडिक्वेट एनफ and it has a more than 5 factor of safety against that kind of disaster also. So you can understand the ancient architecture was so much advanced as well as sophisticated earlier also. So ये हमारा जो it was a lake cost for Kedarnath, जिसका वजह से सडन फ्लड आया, और ये जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है that came down, and that's why that kind of formation happened because of that. And right now ये प्रोजेक्ट भी सीबीआरआई ने टेकअप किया था, उसका रीबिल्डेशन प्लान डेवलपमेंट में भी वी हैड सम कंट्रीब्यूशन। तो आज मतलब आफ्टर दैट काइंड ऑफ 2013 डिजास्टर आज तक तो उसमें हर एक टाइप का फ्लड है, डिजास्टर है, तो सभी के लिए हमने रेमेडियल मेजर्स उसमें इंकॉर्पोरेट किया है। तो उसका वजह से उसमें ऑलरेडी उसके डिजास्टर प्रूफ जो बिल्डिंग बिल्डिंग या उसका एरियाज पेरिफेरी में जितने स्ट्रक्चर से उसमें जितना वल्नरेबिलिटी थे, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी थे, स्पेशली दैट mud flow or so, that has been reduced to a certain extent. तो अभी आप कैसे देख सकते हैं इसको। So with very recent time we can see all this development in these last say 8 to 10 years। ऐसे सेम चीज हमने मंडी का पंचभक्र टेम्पल में भी ऑब्जर्व किया। रिसेंट जो बीएस नदी है उसमें बहुत फ्लड आया, और फ्लड में हमने ऑब्जर्व किया बाकी सब तो बह गया बट टेम्पल एज इट इज है। तो हाँ एक सुपरनेचुरल पावर है, सब आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बट मैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, मैं अपना एंगल से इसको जैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि उसका प्लान डेंसिटी इतना हाई है और उसमें ऑलरेडी डिजास्टर इतना फीचर्स है। सो
वाटर जस्ट पास थ्रू। अब देखेंगे टेम्पल जो बनता है उसमें भी एक फीचर है कि एज पर वास्तुशास्त्र यू विल सी कि हर एक टेम्पल में ना ऐसे ऐसे कोना देखने को मिलेगा। यह टेम्पल एक सर्कुलर शेप होगा। अब एक बहुत क्वेश्चन है कि आप मान लो कोई पानी है या किसी टाइप का लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी चीजों पे, तो एक सिलेंडर है, एक स्क्वायर है, एक एक रेक्टेंगल है, किसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा? आप सिलेंडर में सबसे कम आएगा, राइट? हाँ, हाँ, क्योंकि पूरा वो इजीली वो पास कर सकते हैं। तो जो हमारा आर्किटेक्चर थे पहले, आप देखेंगे उसी ढंग से हमने इवॉल्व होने दिया, जो ऑलरेडी उसमें डिजास्टर रेजिलिएंट फीचर्स उसमें एम्बेडेड है। आज का जो मैं अभी आऊंगा नगर आर्किटेक्चर में एक केस स्टडी और दिखाएंगे आपको। तो जहां पे इस टाइप का फीचर्स है। हाँ, और भी वास्तुशास्त्र का अनुसार उसका अलग रेलेवेंस है। उसका फ्रॉम other religious angle, there may be several advantages, there may be several rules, because that has to be followed to construct these kind of temples or structures. But एक चीज और है, उसका साथ साथ इसका अंदर डिजास्टर रेजिलिएंट फीचर्स भी एम्बेडेड है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट फॉलो दैट आर्किटेक्चर, दैट्स ऑल, एंड यू फॉलो देयर टेक्नोलॉजी और फॉलो देयर। सो जो पथ है, जैसे आज का मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड एंशिएंट इंजीनियरिंग, दैट डजंट क्रॉस ईच अदर। दैट डजंट कि हम ये नहीं बोल सकते कि वो गलत है, हम उन्हीं को आज री इंजीनियरिंग करके बता रहे हैं कि नहीं वही सही थे, और इसमें से और बेटरमेंट किया जा सकता है, या वो लोग हमसे बेटर थे, उनसे कुछ हमें लेने का जरूरत है। हम आज का इंजीनियरिंग में यही कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है। जो 1000 इयर्स से वो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, जैसे पिरामिड है 2500 इयर्स भी एजेड है। तो हम अभी नहीं बोल सकते कि पिरामिड वाज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो सभी टाइप का अर्थक्वेक ले चुका है। और अभी हमें पता है कि कोई भी पिरामिड शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सबसे स्टेबल है। अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, उसमें नहीं होगा। एक पहाड़ भी जो बनता है ना, वो भी एक पिरामिड शेप में बनता है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल होता है। वो एंगल ऑफ सैंड में भी, कोई सैंड को भी आप डालेंगे तो आप देखेंगे एक फॉर्मेशन जो बनता है, वो भी एक नेचर इंस्पायर्ड ये होता है। तो उसका भी जो रीजन वही होता है कि उसका जो रिपोज एंगल है, वो वही फॉर्मेशन को फॉलो करता है जिसमें आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। तो दैट इज बेसिकली नेचर इज गिविंग अस द स्टेबिलिटी, वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग स्टेबल, इट इज ऑलरेडी गिविंग अस द स्टेबिलिटी। तो इसमें मैं आता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके अराउंड आपको मिलेंगे जो नेचर इंस्पायर्ड है। जैसे आप इसमें भी देखेंगे ना, कुछ आपको बुर्ज दुबई का साथ भी आपको मतलब सिमिलरिटी मिल जाएगा। तो आज का इंजीनियरिंग में भी हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया किया। इवन यू ऑल आर्किटेक्ट generally try to follow some kind of natural law, like Fibonacci series you to follow in your architectural design, to follow golden ratios in your architectural design, and those rules are, we didn't invent those rules, we have discovered those. You know what is the difference between invention and the discovery? Because invention is you are something created, and discovery, it is already existing in the nature, you just find out, that's all. So it is already existing. So all these steps we did create it. Nature has created, and all these steps you will see in all our modern architecture, modern design, as well as the ancient design. तो हमारा भी जो जिनसे हमें धरोहर मिल रहा है, वही वो लोग भी शायद इसी डिजाइनों में से इंस्पायर हुए होंगे, और इसी से हमें डिजाइन सीखा। अब हम आते हैं थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का, कि अब जो अर्थक्वेक हमने कल यहाँ पे एक्सपीरियंस हुए, अब कैसे हमें पता लगेगा कि ऐसे कोई अर्थक्वेक आने वाला है आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद हम जो बिल्डिंग बनाएंगे, मान लो 1000 साल बाद, क्योंकि 1000 साल में इसीलिए बताया क्योंकि कुछ 1000 साल का भी कुछ चीजें आने वाला है।
तो आज से 1000 साल का हमें प्रिडिक्शन करना है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये 1000 साल बाद क्या होने वाला है, कैसे अर्थक्वेक आने वाला है, क्या स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसका वजह से तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने प्रीवियस 1000 साल का हिस्ट्री देखा, बट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स हमारा डेवलप हुआ है, वो भी देखा जाए कि अराउंड 200 साल हार्डली हुआ होगा। जो जो रिकॉर्ड भी है वो भी 200 साल का ही है। तो 200 साल को आप यूज करके आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हो कि हम 2000 साल या 5000 साल, तो इससे ज्यादा तो हम मतलब सही नहीं है ना वो चीज, क्योंकि वहां पे आपका इतना डेटा पॉइंट नहीं बना। क्योंकि आज तो आप आज का दिन में आपके पास सिर्फ 200 साल का ही डेटा है, और वो डेटा भी मे बी ऑथेंटिसिटी बहुत लैक करते हैं। रिसेंट अर्थक्वेक में जैसे अर्थक्वेक आया और 2-4 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में आ गया, सब जगह में आ गया, कि क्योंकि इतना ज्यादा आजकल हम इंस्ट्रूमेंटेड कर चुके हैं, हमें हमारा सराउंडिंग को, हमारा एनवायरनमेंट को, हर एक जगह में एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है। आपका फोन में भी एक्सीलरोमीटर लगा, किसी का फोन में अर्थक्वेक सेंसर लगा होता, जैसे मैडम ने बताया कि अर्थक्वेक में उनका पास फोन इंफॉर्मेशन देने लगा कि आपको एक आया है, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो इस टाइप का आजकल सेंसर हर जगह में है, फिर मोबाइल फोन भी एक अर्थक्वेक सेंसर जैसा काम करता है। तो जब आप पूरा इंस्ट्रूमेंटेड, पूरा आपका एक्टिविटी से लेके आपका एनवायरनमेंट से लेके सब कुछ मॉनिटरिंग में है, तो उस सिनेरियो में आपके पास डेटा मिलना इजी है। बट जहां पे आपके पास डेटा नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे? तो वहां पे हम यूज करते हैं फिजिक्स बेस्ड मॉडल, जहां पे जैसे थ्रस्ट फॉल्ट बाउंड्रीज जो होते हैं उसको हम सिमुलेट करते हैं। इन्हें सुपर कंप्यूटर वी क्रिएट दिस टाइप ऑफ बाउंड्रीज इन किलोमीटर्स, कि हमने 10,000 किलोमीटर के बाउंड्री बनाया है, प्लेट बनाया है। एक 10,000 किलोमीटर का प्लेट दूसरा एक 5,000 किलोमीटर का प्लेट का ऊपर जब चलेगा, तो उसका अंदर बीच में जो स्ट्रेसेस बनेगा, उसका वजह से कैसे वेव्स जनरेट होगा, और उस वेव्स का वजह से हमारा स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट आएगा, ये सब एनालिसिस हम करते हैं। हमारा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ये सब एनालिसिस करते हैं। तो एक सिमुलेशन सा डेटा है जहां से हम फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम को समझ के उसको डिजिटाइज किए और उसका टाइम हिस्ट्री निकाले। तो जैसे ऐसे एक अर्थ में काल काल भी शायद हमें ऐसे ही एक टाइम हिस्ट्री आया, ऐसे इस टाइम हिस्ट्री, मल्टीपल टाइम हिस्ट्रीज को हम स्टोर करते हैं और डिफरेंट सिनेरियोस, क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर या हाई एंड कंप्यूटर में ये सिमुलेशंस को रन होता है, तो हम एन नंबर ऑफ सिमुलेशंस कर सकते हैं, कि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है ना, जस्ट आप इनपुट डालते रहो और डेटा आते रहेगा। जब हमारे पास इतना रिच डेटा आ जाता है, तब हम उसका एक साइट स्पेसिफिक रिस्पांस स्पेक्ट्रम निकालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं। तो ऐसे करके हम व्हाट इफ सिनेरियो को एनालिसिस करते हैं, क्या होगा फ्यूचर में, ये सिनेरियो है तो क्या होगा। तो इस टाइप का सिनेरियोस के लिए कि हमने इस टाइप का एनालिसिस किया। अब बिल्डिंग डिफरेंट ओरिएंटेशन पे हो सकता है। ये जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, इस कभी ईस्टर्न फेसिंग होता है, कभी साउथर्न फेसिंग होता है, बहुत सारा फेसिंग होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिलीजियन, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ceremony, they have different type of construction। आर्किटेक्चर आप लोग सभी को पता होगा, आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि बिल्डिंग का जो फेसिंग है दैट हैज अ बिगर रोल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो फॉर ऑल दिस कंडीशंस वी हैव ए सॉल्यूशंस, कि क्या अर्थक्वेक का एक बिल्डिंग ऐसे घूमता और अर्थक्वेक मान लो किसी और इसी डायरेक्शन में आया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और इसी डायरेक्शन में अर्थक्वेक आएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब चीजें अब कुछ बेसिक मेथोडोलॉजी में बताने जा रहा हूँ, बस इसको मेथोडोलॉजी आप लोग जान लीजिए, डिटेल शायद समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बहुत सारा सिस्मिक एनालिसिस जो होता है या अर्थक्वेक एनालिसिस जो होता है, उसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। एक हो गया स्टैटिक एनालिसिस, एक होता है रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इसको हम स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। फिर लीनियर डायनामिक एनालिसिस, रिस्पांस स्पेक्ट्रम और लीनियर डायनामिक बिल्कुल सेम चीज है। फिर नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस होता है,
फिर नॉन-लीनियर डायनामिक एनालिसिस। नॉन-लीनियर स्टैटिक एनालिसिस में हम नॉन-लीनियरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हर वक्त लीनियर नहीं बिहेव करता, नॉन-लीनियर बिहेव करता है। कोई भी स्ट्रक्चर, पुराना स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर, कुछ भी ले लीजिए, तो नॉन-लीनियरिटी है तो है ही। स्ट्रक्चर मटेरियल भी नॉन-लीनियर बिहेव करता है, स्ट्रक्चर भी नॉन-लीनियर बिहेव करता है। और नॉन-लीनियर डायनामिक जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी है। नॉनलीनियर डायनामिक को हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी बोलते हैं, जहां पे जिस टाइप का अर्थक्वेक आया, जैसे काल एक टाइम मोशन आया, उस मोशन के लिए हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस के लगाते हैं। अब इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस, जिसमें हमने इक्विवेलेंट एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो आईएस कोड में प्रोवाइड किया हुआ है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल टाइप, उसका वजह से हम एक इक्विवेलेंट लैटरल लोड अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है या फैकल्टीज नहीं है जिनको मैं थोड़ा सा बता पाऊंगा, लेकिन आई थिंक यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वासी स्टैटिक एनालिसिस, जहां पे जो अर्थक्वेक आता है उसको लैटरल फोर्स की तरह स्ट्रक्चर में डालते हैं एट डिफरेंट लेवल। तो जैसे ऊपर में जो फोर्सेस है वो थोड़ा सा है, उसका नीचे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, उसका नीचे और थोड़ा जाएगा, तो एक ट्रायंगुलर सा या ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। उस ढंग से हमने रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से कैलकुलेट करके लोड को अप्लाई। तो ये बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ लोड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है। ये भी एक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में हम डिफरेंट मोड्स को कंसीडर करते हैं कि हम स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकता है। कल जैसे हमने देखा कि बिल्डिंग पे पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब हिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा भी ऐसा हो। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर का मटेरियल क्या है, स्ट्रक्चर आरसीसी का है या किस चीज का है, उस पे भी डिपेंड। तो ये सभी चीजों का वजह से तो उसका जो पॉसिबल, उसका जो तरंग है, उसका वजह से जो पॉसिबल वाइब्रेशन पैटर्न हो सकता है उसको हम मोड्स बोलते हैं। और इसी टाइप का हम बहुत सारा मोड्स को एनालिसिस करके उसको सुपर इम्पोज करते हैं। समटाइम्स सभी मोड को हम ऐड कर देते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट सम बोलते हैं। कभी-कभी सबको सम रूट ऑफ सम आरएमएस करते हैं, उसको हम आरएमएस या एसआरएसएस बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। सम समटाइम्स इसको हम क्यू सीक्यूसी बोलते हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशंस। तो सभी मोड्स को कैसे कंबाइन करते करते हुए हम उसके एक्चुअल रिस्पांस को निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैं स्किप कर सकता हूँ। और अब आते हैं लीनियर डायनामिक। तो स्ट्रक्चर को जब मान लीजिए एक न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर में उसको हमने एक तरफ से कोई डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसका वजह से उसमें क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, स्ट्रेन्स आ रहे हैं या डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसको हम कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको लीनियर डायनामिक एनालिसिस। तो ये भी इसी ढंग से है। मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं तो सब लोग सो जाएंगे। तो इसको हम क्रूज आवर एनालिसिस भी बोलते हैं। ऐसे ही हम एक एक होता है स्ट्रक्चर पे कैपेसिटी, एक होता है डिमांड। डिमांड क्या था, जैसे काल अर्थक्वेक आया तो वो था स्ट्रक्चरल डिमांड, इतना भाई अर्थक्वेक आएगा, इतना स्ट्रांग आएगा, कुछ भी हो सकता है। और एक स्ट्रक्चर पे इनहेरेंट कैपेसिटी है, भाई मेरे पास तो इतना ही है, इससे ज्यादा हो गया तो मैं तो गया। तो ये जो दोनों का बीच में जो ट्रेड ऑफ है, तो डिमांड को हर वक्त कैपेसिटी से कम होना चाहिए, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। तो हमें कैसे भी उस कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो ऐसे ही टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है, जहां पे हम रियल हिस्ट्री को अब अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी मैक्रो मॉडल माइक्रो मॉडल ऑलरेडी सिद्धार्थ हैज एक्सप्लेन्ड। सो डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स है, जहां पे हम एक एक ब्रिक को मॉडल करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो मॉडल, क्योंकि माइक्रो लेवल पे जाके मॉडलिंग हो रहा है। ब्रिक को मॉडल किया, मॉडल को मॉडल किया, जॉइनरी को मॉडल किया, सब कुछ माइक्रो लेवल पे हो रहा है। एक मैक्रो स्ट्रक्चर को मॉडल किया, उसका बेसिक स्ट्रेस ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर को मैं एनालिसिस करूंगा, उसका आगे नहीं जाऊंगा। अब आते हैं कि केदारनाथ टेम्पल। अब हमने ये जितने भी एनालिसिस था हमने केदारनाथ पे परफॉर्म किया। केदारनाथ का पैरेलल प्लान डेंसिटी देख सकते हो, अंदर से मंदिर तो है, इतना सा छोटा सा पैसेज है बोल सकते हो, लेकिन उसका पूरा बिल्डिंग पेरिफेरी देखो, सो इट इज आल्सो नियर 50% एरिया। So near 50% area is a wall area.
So now you can imagine how much stable this kind of structure can be. ऐसे ही हमने जब एनालिसिस किया हमारा फील हुआ कि ऐसे जो वर्टिकल वॉल्स है, एंशियंट टेम्पल्स है, टावर्स है या बिल्डिंग्स है, उसको तो हम एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई कार्ड एलिमेंट है, कोई डोम है, कोई आर्ट है, उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं? तो उसका वजह से हमने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप, जो सॉफ्टवेयर कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो उसको डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग इन आर्किटेक्चर प्रोबब्ली फ्यूरिकल एनालिसिस का नाम सुने होंगे। सम काइंड ऑफ वेरिएंट ऑफ फ्यूरिकल एनालिसिस हमने यूज किया और इसको हम लिमिट एनालिसिस भी बोलते हैं। नाउ मैं आता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अब मेरे ख्याल से सब लोग थोड़ा जाग जाएंगे। अब आते हैं कि राम मंदिर का एनालिसिस और उसका डिजाइन। ठीक है, सो यू नो द आर्किटेक्ट, एनीबॉडी? If you people are from architectural background, so I expect you know the architect of this temple. Don't know? Okay. I'll give you a little brief about that community as well as that परिवार का मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता जाता हूँ। ये है सोमपुरा परिवार, अ, जो हाँ, जो itself इंडिया का धरोहर है। और आप देखेंगे ये लोग जो टेम्पल बनाते हैं, ये अपना पीढ़ी का पीढ़ी इसी ढंग का नगर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। इवन अदर आर्किटेक्चर पे भी ये लोग काम करते हैं। तो ये सीबी सोमपुरा इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन एंड वे वे द डिजाइनर्स। अब स्ट्रक्चरल एंगल से उसको एनालिसिस किया गया। तो स्ट्रक्चर में इतना आर्किटेक्चरल फीचर थे, आप लोग जब जाएंगे you will see so many architectural features। अब इतना माइन्यूट इंट्रिकेसीज है। आप जब विजिट करेंगे, जनवरी 24 को ओपन हो जाएगा। I'll request many people like all of you should see the architectural marvel as well as the structural marvel, because you'll see so many carvings are there which has been adapted from different era, different styles। You'll see so many architectural features। कुछ तो अभी एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो कुछ हम लोग जनवरी के बाद कोई मेरा लेक्चर सुनेंगे कोई प्लेटफॉर्म में, तो प्रॉब्ली मैं उसको और डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे इस इधर। तो यहाँ पे सो मेनी आर्किटेक्चरल फीचर्स था। अब सब आर्किटेक्चरल फीचर को मैं मॉडल करने जाऊंगा कंप्यूटर में, तो वो तो मतलब सालों का काम है और हमें बहुत जल्दी उसको डिलीवरी देना था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो फाइनली हमने स्ट्रक्चरल मॉडल को जनरेट किया। ये मॉडल ऐसे है जो मेजर आर्किटेक्चर सभी को कवर करता है। ये है स्ट्रक्चर, हाउ इट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड ऑल। सो अराउंड 50 मॉडल्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किया। उसके बाद हमें एक स्टेबल मॉडल मिला, इसमें उसमें भी 9 मॉडल को हमने सिलेक्ट किया, प्रपोज किया कि ये 9 मॉडल जो मॉडिफिकेशंस है ये आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक फाइनलाइज हुआ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जितने भी स्टोन्स आप देख रहे हो वहां पे यूज हो रहे हैं, बंसी पार्ट स्टोन फॉर सुपर स्ट्रक्चर दैट वाज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। मटेरियल प्रॉपर्टीज हमने इवैल्यूएट किया एनडीटी से भी, टेस्टिंग से भी, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग से भी। उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हमने एनालिसिस में इंकॉर्पोरेट किया और उससे हमें एक्चुअल एनालिसिस मिला। तो ये उसका जो फाइनल जो व्यू है मंदिर का आफ्टर डूइंग ऑल द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑल, दिस इज दिस। नाउ यू कैन सी द आर्किटेक्चरल व्यू। लाइक मैं तो फिजिकली नहीं दिखा सकता हूँ, तो आपको वर्चुअली दिखा सकता हूँ कि कैसे बनने वाला है वेरी फास्ट पेस। और ये चीज हमने स्ट्रक्चर के साथ आर्किटेक्ट दोनों हम दोनों ने मिल के बैठ के घंटे घंटे डिस्कशन करके हमने बनाया इस चीज को।
सभी टाइप का फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए सब टाइप ओके okay so we got many recognitions also from different as well as from the chairman construction committee for this like he appreciated our efforts towards this it's very useful idea now मैं आता हूँ और चीजों पे अ, जैसे बिल्डिंग में कोई क्रैक है क्रैक बनता है ना कोई स्ट्रक्चर में हमने लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्रैक बनता है वो क्रैक को कैसे हम सिमुलेट करें कंप्यूटर में तो उसके लिए एक डैमेज प्लास्टिसिटी मॉडल हम बोलते हैं जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत थोड़ा मैथमेटिकल है क्योंकि मेरे को पूरा पता नहीं था ऑडियंस का बारे में तो मिक्स्ड चीजें रखे थे हमने तो वहां पे आप देख सकते हो कैसे एक डैमेज बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में ऐसे प्रोपागेट करता है आप देखेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके क्रैक आते जाएगा और वो बढ़ते जाएगा दोनों चीजें तो आप देख सकते हैं इस टाइप का सिमुलेशन हम करते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है उसका कैसे बिहेवियर हुआ इस टाइप का डिजास्टर इवेंट फॉर डिफरेंट लैटरल लोड वर्टिकल लोड एक सिंपल आर्च एलिमेंट में हम देख सकते हैं किस टाइप का ट्रैक्स पैटर्न तो ऐसे ही हमने सीएसएमटी मुंबई में जो बिल्डिंग है उसका एक फैसेट का किया है जिसमें भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप का ट्रैक पैटर्न कैसे इवॉल्व होता है विद टाइम हम देखते जाएंगे विद टाइम कैसे कैसे हमने लोड बढ़ाते गए विद एप्लीकेशन ऑफ lateral load as well as vertical load तो कैसे कैसे अच्छा एकदम से एक बंद हो गया ऐसे ही कोई मान लीजिए फ्लश फ्लड सिनेरियो है तो उसके लिए भी हमने कुछ प्रोग्राम डेवलप किए जहाँ पे कि कोई ऐसे वेव्स जनरेट करके उसका इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो देख सकते हैं तो ये सभी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव प्रोग्राम्स है जिससे हम ये कर सकते हैं तो स्ट्रेटजीज फॉर mitigating different hazards for heritage structures are like this and अब new uses अभी का जो यूज है पहले से ज्यादा डिफरेंट हो चुका है तो उसका वजह से हमें क्या एडेप्टेशन करना चाहिए स्ट्रक्चरली mitigate impact of tourism because of the tourism pressure we are actually creating lots of damages so how to mitigate all those or manage all those pressure preserve the identity tackle climate change because climate change का वजह से इस साल हमें बहुत सारा फ्लड एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे कुछ लास्ट मंथ हमारा उत्तराखंड हिमाचल में देखा इस अभी हो रहे हैं सिक्किम में तो ऐसे जो कंटिन्यूअस चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसमें कैसे इस स्ट्रक्चर को सेव किया जाए और energize this local economy from this kind of structures and heritage properties so that's the complete cycle so that has to be kept within the bracket of sustainability so all these structures will be sustainable should be minimum non-intrusive so all these things has to be considered as well as reversible because कोई भी आप इंटरवेंशन करेंगे स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए या टेम्पोररी स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरत होगा तो बाद में उसको हम खोल भी सकते हैं रिवर्सिबल भी होना चाहिए तो वो सब चीजें सभी आना चाहिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर questions ask yes
हाँ कोई कुछ बोल रहे थे हाँ Yeah, there are several measures were adopted. Like उसका जो डेवलपमेंट किया गया उस पूरा एरिया को उसको रेज करके प्लेटफॉर्म पे रेज उसका जो पानी का जो पैसेज है उसको भी प्रॉपर वे में चैनलाइज किया गया तो ऐसे करके पूरा जगह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया गया मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट भी किया आपने देखा होगा शंकराचार्य जी का जमीन स्ट्रक्चर को हमने ज्यादा स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मैंने बोला ना मोर देन 50% इज दैट प्लान एरिया डेंसिटी तो उसमें तो आपको क्या ही करना है ऑलरेडी डिजास्टर रेजिलिएंट है हाँ हाँ उसको प्रॉपर वे में उसको प्लानिंग किया गया ऑल डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया गया सो दैट फ्यूचर में इस टाइप का कुछ होता है तो प्रॉब्लम नहीं है ओके मेबी आई आस्क नेक्स्ट आप ये she will try to give us in her lecture maybe some slides on simulations हाँ ओके ओके आई गॉट इट एवरी वो चीज हमने बताया जैसे स्टैटिक एनालिसिस डायनामिक एनालिसिस बट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस टू इट एक्चुअली हाँ 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 लेकिन एक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ये क्या क्या टाइप का एनालिसिस है बताया लेकिन उसको कैसे हम डाल सकते हैं एनालिसिस में या इस टाइप का तो एक मोटा मोटी फ्लो चार्ट का दिखा देना नेक्स्ट लेक्चर नहीं एक्चुअली मेरे पास कोई स्लाइड्स नहीं बना हुआ है तो मे बी आई कैन डिस्कस डिस्कस मींस सीधा बताया है ऑलरेडी कि आपने पहले क्या करते हैं कैड मॉडल को आपने इंपोर्ट करते हैं हाँ अच्छा हैंड्स ऑन मेरे ख्याल से नेक्स्ट वर्कशॉप जब करेंगे ऑर्गेनाइज तो डेफिनेटली एक सेशन हम लोग रखेंगे ये उसका एक लिमिटेशन है यहाँ पे दिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली कंप्यूटर्स जो ये जो मॉडल्स आपको दिखा है नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं ओपन होगा या लैपटॉप में हम नहीं ऑपरेट कर सकते उसके लिए वर्क सेशन एटलीस्ट जरूरत है जिसमें इस टाइप का मॉडल ओपन भी हो जाए उसको कैसे एनालिसिस करना है थोड़ा सा भी थोड़ा समझ पाएंगे लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज है तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नहीं हाँ एग्जैक्टली आपका पॉइंट बहुत सही है आप जो बात बोलना चाह रहे हैं कि कवरिंग हो गया पूरा एरिया इस कवर हो गया जैसे कोई स्लोप में कोई स्ट्रक्चर है हाँ हाँ सर आपका पॉइंट वैलिड है वेल टेकन है आपका वो स्लोप भी आपका मूव हो गया पॉइंट बहुत वैलिड है लेकिन उसके लिए आप ऊपर इंजीनियरिंग करेंगे इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं सिर्फ एक बिल्डिंग को बनाना चाहिए हाँ पूरा एरिया को डेवलपमेंट करेंगे दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप उस एरिया को डेवलप करेंगे कि आपने सॉइल एंकर लगाया वाटर एंकर डाला रॉक बोल्ट्स डाला पूरा एरिया को हमने आप एक लेक्चर और है which will be delivered by Dr. Mohit Samanta day after tomorrow that will be addressing the uh, issues of Tungnath table तुंगनाथ में भी ऐसा ही सिनेरियोस है वो कितनी स्लोप में है तो उसमें भी वो दिखाएंगे कि वो कैसे अपने स्ट्रेटेजी प्रोवाइड किए जिसका वजह से वो पूरा हिल कैसे प्रोटेक्ट किया और हिल आपका प्रोटेक्ट हो गया तो आपका स्ट्रक्चर भी प्रोटेक्ट हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डिजास्टर रेजिलिएंट है आपको प्रोटेक्ट क्या करना है हिल को करना है पूरा एसेट कवरिंग और उसको प्रोटेक्ट करना है उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं जियो मेम्ब्रेन्स होते हैं
जियो टेक्सटाइल आते हैं, रॉक बोल्ट्स, रॉक एंकर्स, बहुत सारा चीजें हैं। तो सभी को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मिटिगेशन प्लान बनाया जाता है, जिसका वजह से ये सब चीजें, इवन हम लोग recent times में provincial government also we are getting lots of calls and all to that kind of Simla and other areas, because आप देखेंगे शिमला वगैरह में भी बहुत सारा डैमेजेस हुआ, इस टाइप के हिल में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सब चीजें अभी R&D स्टेज में भी है, प्लस हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। यस, ग्लोबल लेवल में देखना पड़ेगा इस टाइप का हैजर्ड है तो कैसे किया जाए। जैसे अब रिवर का बीच में कोई टेम्पल है, आप रिवर को डाइवर्ट कर सकते हो, आप रोक तो नहीं सकते हो, तो वो डाइवर्शन पे वर्क करना चाहिए ना। तो इस ढंग से डिजास्टर मिटिगेशन प्लान पे विद अलॉन्ग विद एनडीएमए, जो हमारा नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी है, उसके साथ भी हम मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे एक हैजर्ड नहीं, आपको सभी हैजर्ड्स को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने फ्लड के लिए तो देख लिया, लेकिन अर्थक्वेक में नहीं देखा। अब एक हिल है जो अर्थक्वेक में वल्नरेबल है, फ्लड देख लिया, लैंडस्लाइड देख लिया, सब अर्थक्वेक में नीचे आ गया, तो उसको उसके लिए भी एनालिसिस करना, जितने भी व्हाट इफ कंडीशंस है, मैंने बोला ना, जो जो भी वर्स्ट कंडीशन है सभी के लिए आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और फिर अपन उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। जोशीमठ के लिए after the disaster immediately we taken to the site. No, actually मैं आपको जोशीमठ में I was personally involved even after first जिस दिन ऐसे इवेंट्स हुआ within 24 hours more land were airlifted from Dehradun and taken there, and in that area we executed like there are multiple flows which are in the path of movement. Some are moved, तो जहाँ पे आपका ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो चुका है, इस टाइप का सीनरी हो गया, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो रिलीज हो गया वो हो गया, और उसका जो बेस है वो एक फर्म सॉलिड रॉक पे है, तो पूरा बेस तो नहीं जाने वाला है। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि पूरा सिंकिंग पूरा जोशीमठ बहने वाला है, ऐसा नहीं है सीधा, क्योंकि उसका बेस में बहुत बड़ा चट्टान है, पत्थर है, रॉक है, तो वो शिलाओं का वजह से वो तो पूरा नहीं जाने वाला है। जैसे अभी बात कर रहे थे ना ग्लोबल फेलियर, लेकिन छोटा छोटा मल्टीपल स्लोप्स है जहां पे अनप्लान्ड वे में डेवलपमेंट होने का वजह से इस टाइप का मल्टीपल फेलियर्स होता है। और ये भी बोलूंगा कि ये फेलियर्स ऐसे नहीं कि एक दिन में हो गया, काफी दिनों से चलता रहा। और एक चीज और ऑब्जर्व हुआ कि पानी, एक जगह में से पानी लगा, अचानक से आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे पानी निकलने लगा, तो अंदर का कोई एक्वाफायर हो गए, हिडन एक्वाफायर, जो अचानक से बारिश हुआ कोई भी एक्टिविटी की वजह से, उसका वजह से भी इस टाइप का मूवमेंट हो सकता है। तो हमने वहां पे ड्रोन से भी मैपिंग किया स्लोप्स का, डैमेजेस का, बिल्डिंग को भी लगभग एक महीना हमारा टीम वहां पे थे, बिल्डिंग को भी मैपिंग किया। इवन जो लोग डिजास्टर इफेक्टेड है उनको भी हम रिहेबिलिटेट किया टेम्पोररी शेल्टर्स वगैरह में, लेकिन ये प्रॉब्लम इज स्टिल ऑनगोइंग, देयर इज नॉट ए सिंगल सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। क्योंकि उसका ऊपर आप देखेंगे पॉली है, पॉली से आपका ग्लेशियर्स है मेल्ट होकर नीचे आ रहे, और सेम स्लोप ही आपका नीचे जाके आपका मतलब, और ड्रेनेज जो है हिल्स में, हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे, ड्रेनेज जो है, जो ओरिजिनल ड्रेनेज पाथ है उसको इंटरप्ट किया गया because of the human habitation, those were interrupted very severely. तो जहाँ पे ड्रेनेज इज इंटरप्टेड प्रॉब्लम स्टार्ट्स, और पानी जहाँ पे है
वहाँ पे प्रॉब्लम है। पानी का नाम जीवन भी है एक तरफ, दूसरा तरफ है पानी आपको क्या प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, शामरा यहाँ पे ऑडियंस है ये इनको ही पता है, और मतलब सही में डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट करता है जहाँ से आपको पानी नहीं निकल पा रहे, इनोन मास प्रेशर जनरेटर वो पूरा आपका लैंड मास को लेके निकलता है। Yes, you should not fight, you cannot prevent, you have to flow with the nature, and accordingly your solution should be adapted. Yes. Ah, ah. नहीं नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी आपका बात में आता हूँ। आईआईटी रुड़की ने वहाँ पे सब बियरिंग कैपेसिटी से लेके सब कुछ टेस्ट किया। आईआईटी रुड़की का जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब टेस्ट किया। ऐसा नहीं वेस्ट टाइप का रिपोर्ट्स रिवर्स है, बट जो है फैक्ट और साइंटिफिक एविडेंस पे बात करते हैं। तो सिक्स स्टेप सिंगल प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इतना सालों से 1936 से लेके आज से 100 साल हो गया, स्ट्रक्चर कुछ नहीं हुए, अचानक से हो गया, कैसे हो गया? बहुत सारा चीज है। कुछ लोग अपना रिवर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ के लोकल लोकल लोगों भी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एक्चुअली ऐसा ट्रूथ नहीं है, उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे भी डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो ड्रेनेज पाथ है उसको ऐसे इंटरप्ट किया गया। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो नेचुरल जितने भी ड्रेनेज है उसको ब्लॉक करके उसके में घर बना दिया गया, उसको उसी पानी को यूज करके अपने फार्मिंग कर रहे हैं। तो जो पानी का नेचुरल फ्लो है वो जाएगा उस पे, आप स्वेज सिस्टम बना दिए, उसका भी कोई डिस्पोजल का ये नहीं है, तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, दैट इज द प्राइम रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। अनप्लान्ड, अब ऐसा नहीं है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ऐसे दूसरा एक जगह दे दीजिए, हमने आपको थाउजेंड ईयर्स के लिए आपको प्लान बता देंगे कंस्ट्रक्शन करने को। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स के लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग नहीं, यही है मेन। SWOT एनालिसिस, हाँ व्हाट स्टेट एनालिसिस, हाँ अभी अभी जो पहले तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट वाटर स्टेट एनालिसिस अभी जो रिसेंट एनआईएच जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हाइड्रोलॉजी है, they have done it, they have given some plan, and we also have done a drone survey try to map the water bodies, क्योंकि कहाँ से कौन सा वाटर आ रहा है ना कुछ नहीं पता लगेगा। वहां पे एक पाजल सा लगेगा कि आप एक पाजल में खड़े हो, पानी भाई कहाँ से आ रहा है, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो हमने बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स अप्लाई किए, किसी जगह में डाई अप्लाई किए, कुछ किसी जगह का किसी जगह में काला छोड़ा, किसी जगह में निकल रहा है, कोई लिंकेजेस नहीं, ऐसा भी ऑब्जर्व किया। तो बहुत सारा एक पजल एक्सपीरियंसेस था, बट एक साइंटिफिक चैलेंजेस तो था भी और अभी भी है, बट वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दैट। यस। Okay, that's a very very good questions. And probably the tunnel project of Ritual, uh, that was assessed in a very scientific manner. And whatever the tunnel construction is going on, for that, all the safety measures they have considered, like for uh, tunneling, the way they are doing blasting, or they are using TBM, tunnel boring machine also they are using in a particular batch. So for that,
to create minimum disturbances. They have taken lots of measures for that. So expected whatever, because we are not involved in that project, we cannot comment on it. But I personally visited 3 times some of the sites which were affected by violence. And they've adequately taken up certain measures, but still we cannot ensure that there will not be any effect. There will be long-term effect. But again, the scientific organizations are involved with it, and they are yes, yes, yes. Yeah, yeah, you're true. It may happen to eat aquifer and it can create problem. That's why they have done some geophysical mapping, like we do it for ERT, some the kind of NDT equipment. Using that, you actually map the underground water bodies, and based on that, you decide your tunnel path. Sometimes there was actually a incident happened in that area itself because they were doing some tunneling and it hit in the aquifer, and that tunnel boring machine itself got stuck in that. So that kind of scenario also may come across. They are doing it in a scientific manner, I feel. Uh, yeah, that's why I say we can do it in a simulation environment. Like whatever, what if conditions, like if this happens, if that, whatever is coming to your mind based on your scientific estimations and calculations, you simulate those things in a realistic assumptions. With Yeah. assumptions, you simulate it, see the effect, No. all these effect on the structures, or maybe in the local environment. And based on that, you take the remedial measures. Because you should be proactive, not like yes, yes, yes. Because these structures you cannot rebuild again. Suppose a normal household that got affected, you can rebuild it, you can compensate. Like although it's unfortunate, but you can do certain things. But in this case, you cannot get it back. Students, any questions? Thank you very much. और क्या ठीक है एक है पूछ लेंगे Thank you, sir. It was truly a very interactive session. We will now break for lunch. We shall meet again at 2:30 p.m. for the next session. Thank you. अभी लंच नहीं हुआ